Okay, Ji. For the deletion in the BS tree, what we have is that we have actually three different scenarios. So the first scenario is that the node that we want to delete, if it's a leaf node, then a different procedure to delete a node would be called. If the node has one child, then we would delete it differently, and if it has two children, then there would be a very different behavior that we would implement to delete a node. So in the deletion BST, definitely what we have the cases that I just discussed are that. We For example, if I want to delete this node 40, this is a leaf node. If I just remove it from here, this would not make any difference, right? For the general, for the overall tree, we would not have any difference here. So this leaf node can be deleted without any issue to other nodes, right? So that's the simple case for deleting a node. Then for the second case, when we have a node which has one child and we want to delete that node, in that case, the scenario would be a little different. For example, we want to delete this 54. It has just one child. So if you want to delete it, definitely what we need to take care of is that we need to take care of this child, this 52 value, right? And for the third case, when we have a node which has two children and we want to delete it, definitely now this scenario is a little, in fact, more complicated than the previous one when we had only one child. If we want to delete this node, now we have two different subtrees that we need to somehow change to again construct a BST from the two subtrees. So let's see how we cater these cases. So here is the scenario when you want to delete a leaf node. So the very first case would be that we would actually find that node which need to be deleted. So as I discussed in the previous lecture, that finding a node is prereq for inserting and deleting both cases. So for deletion, what we do is if a user wants to delete this node 25, this value 25. Remember when I say value 25. It means that I want to search the key on which this tree is built and the value is 25. This 25 maybe it can be a roll number, it can be maybe an ID assigned to a person, maybe an ID assigned to a product that I want to delete from the catalog if I have maintained this tree for a catalog. So this 25 is just one ID of the record. Otherwise, this node uh, could contain the entire record of this specific record which has this ID 25. So, for example, if this is a customer record, we can say that the ID number 25, the customer with the ID number 25 is to be deleted. So this node would actually be identified with the ID 25. However, it has all the other data fields as well. So in this node, we would have this one data member that is the customer, and we want to identify that customer based on the ID. So we have created this tree on that ID, customer ID. So if I want to search 25, it means the ID of the node is 25 that I would search in the tree. And when I reach this ID, by searching, I would go to the right of 10, then I would go to the left of 30 and find this 25 here. So if I have found the node, the value 25, the key 25, then I would check the scenario. Now the scenario is the first scenario where this is a leaf node. So deleting a leaf node is very simple. Just make this pointer, the left child of 30 to null, right? So this is a leaf node. If it's removed, then the left child of 30 would be null. So that's a very simple scenario. If you have any questions, you may ask. Okay, so if there are no questions, then I can continue with this. For the next, in fact, scenario, I'll ask you guys to, in fact, share your thoughts here. So, deleting node 25 would be easy. Um, just make this point left point of 30 to null. So it would be null. So the tree remains a binary search tree. So there is no issue that we actually see here. So let's see. Another example, if we want to delete this 75 here,
Can anybody explain how we would delete it? Okay, Hanan asks, how can we make it null? Remember this this node, actually this node, it had two pointers, this right child and this left child. Remember the structure that we discussed earlier, that the structure of node in a tree, it has two pointers to the next nodes. The one is left child and the other is right child. So in order to delete this 25, what we do is we just call delete on this pointer. We would just delete this pointer and then we would make this left child of 32 null. If you want to know the code, I'll discuss it in a later slide. Just wait. We would actually use recursive call here to reach this 30, this parent of 25, to make its left child null. Okay, so for the recursive call, this when we delete this 25, on the backtracking, the recursive call would go to its parent as well and then to its grandparent. So we can adjust pointers on the way back to the root, right? So that is how we reach to the pointer to the parent. So another example, if you want to delete 75, the first thing is to find 75 in this tree. Okay. So in order to find 25 in the tree, what I would do is that I would compare the value with 42. Remember BST search? So we would compare 75, it is a bigger value. So it would be on the right side of 42. So I'll move on to the right child of 42. It's 70, 70 is still smaller. So I'll go further right. Now I find 99 and I move to the left, further left, and I reach this 75 value. Okay. So when I find 75, I'll check if it has a right child and a left child. So if it has neither of them, then this is a leaf node, and I just call delete on this pointer and ask its parent to adjust this left child, right? It's not necessary that it's always the left child, it can be a right child as well, but I would adjust the respective pointer of the parent. Okay, so I would just adjust it and I would make the left child of 81 to null. And this would be, of course, a recursive call. I'll show you the code in the later slide. So another scenario, GG, cosine. सो ये राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड का तो लाइक पेरेंट डिसाइड करेगा ना वो पेरेंट उससे छोटा तो ऑब्वियसली राइट पे आएगा ना बड़ी वैल्यू, द बिगर वैल्यू goes to the right, smaller value goes to the left. यस सर ये कह रहा था हाँ ठीक है. Actually we created this tree and in a way कि we have bigger values towards the right of the root node and smaller values towards the left. Remember we discussed that insert function. We inserted the value in this order. यस सर ठीक है ना. तो we in the delete function we are not concerned कि how this value reached here, but this is the sequence of the insertion of the values that actually dictates the shape of the tree. ये बात समझ आती है कि if I inserted, if this 42 is the root node, why is it the root node? It could be 40 as well. Why is 42 the root node? Any reason, if you can guess why the 42 is the root node? सर cause it is in the start I guess like sequence अगर है values का तो start वाली तो root node स्टार्ट पे तो अगर डाटा सॉर्टेड है, सबसे छोटी वैल्यू 3 थी. इट कुड हैव बीन 3 हियर. तो 42, व्हाई 42 इज द रूट नोड. जी साकिब, बिल्कुल ठीक. बिकॉज 42 वाज द नोड दैट आई इंसर्टेड एट द फर्स्ट पोजीशन. ठीक है, सबसे पहले मैंने 42 इंसर्ट किया था, इसलिए ये रूट पे है. उसके बाद जो वैल्यू जिस सीक्वेंस में आती नहीं उसी सीक्वेंस में इंसर्ट होती थी. This 3 is not the smallest value and it's on the leftmost branch. Reason being of it being on the leftmost branch is that it was inserted after 42, 39, 11 and 8. okay okay ठीक है. तो अगर ये पहले आई होती 3, तो पॉसिबली अगर वो 8 से पहले आई होती तो इस 8 की जगह पे 3 होता और 8 उसका राइट चाइल्ड होता. दैट्स सही हाउ BST ग्रोज ना. yes sir
ठीक है। तो जस्ट कंसिडर अ सिनेरियो कि इफ आई हैव सॉर्टेड डाटा 1 2 3 4 5 and I insert these values in this fashion into the tree. What would be the shape of the tree then? I have assorted data first five values 1 2 3 4 5, and I insert them into a BST in this sequence. So what would be the shape of the BST? ऐसे इसमें करंट ट्री में डालना या नहीं नया नहीं लाइक नहीं. बनाना? I just want to create a tree. Kusan, जैसे just wait. I would like to ask someone else as well. ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही बैठे रहो. Maybe शेजिल. ठीक है, शेजिल यहाँ से. ठीक है, ओनली राइट सब ट्री विल फॉर्म. ठीक है जी, साकिब आप भी ठीक है. इट वुड बी अ लीनियर. ठीक है. सो व्हाट इट वुड लुक लाइक इज, it would be like, one would be at the root, then on its right would be two because it's the sequence. When I have only one on the root node and I insert two in it, the value would be greater than one and it would go to the right child, right? Again I insert three, then it would become the right child of two. Again, if I insert 4, it would become right child of 3. For 5, it would become right child of 4. So this is the actually shape of the tree of the BST that sorted data would form. If the data is in the descending order, then the shape would be exactly opposite. It would be like this one. Okay, so the shape of the tree, it is dictated by the sequence in which I have inserted the values. So why I had the value, for example 75 here on the left of 81, was because 81 came before 75. Okay, so then I deleted this 75 and made this left pointer of 81 to none. So this is how I delete a leaf node. Any questions? Okay. So if I node delete the node 40, I'll search from 42. Smaller value goes to left. Okay. Oh, sorry. Here is the 40. If you want to delete this 40 node, 42 left with 39, and then I have 40 on the right of this. So if I delete this leaf node, simply I would remove this node from the memory. I would call delete on this node, and then I'll make the right shell of 39 to null. So the output would be like this one. Okay. So leaf nodes can be deleted without any disturbance in the tree, or without any transformations or any restructuring of the tree. So let's see how we delete the other two cases. So if I want to delete a node that has one child, like the one shown here, if I want to delete 18, it has only one child, that is 21. And again, this 21 is a subtree, is a complete tree, the subtree of the entire tree. Then I need to adjust this subtree into the original tree. So what I can do here is, um, if any one of you can guess it, Ahmed Bilal, Sir, can you repeat the question? how would you actually restructure the tree that you remove 18 from it, but join this 21 somewhere in the tree? Sir, we would set the right pointer of our root node, which is 5 to 21, and Exactly. we would delete, we would set a temp pointer for 18 and we would delete it. तो ये Okay. प्रीवियस नेक्स्ट वाला आ जाएगा इसमें. Uh, let's just discuss the procedure and not discuss the pointers that we would use, because we would use recursive implementation here, so we would not have this many pointers here. So we would just follow the procedure of find, and we would find 18 here on the right of 5. Then we would just delete this node, and somehow we'll send this pointer, that this is now the pointer that should be replaced here in the place of 18. Okay, so we would send this pointer back to 5 and ask the parent to adjust this pointer towards its right. So 5 would make the right child as this 21. So we can just simply remove this 18, call delete on it, and replace 21 here on the place of 18.
So the final tree would look like this one. We would just remove 18 and we would move 21 on the place of 18. Or you can say we would make 21 as the right child of root node. So a node with one child is also very simple to delete. We would just replace it with its only child. Okay, this scenario is very simple. Any questions? Okay, so let's move forward. Consider if we want to delete 8 here, this 8 has only one left child. So I'll find this 8 here and call delete on this node and replace this 8 with 3. So 3 would become left child of 11. Okay, so that's the scenario. This is the final output. 3 would replace 8. And of course, I need to release the memory of the pointer that I used in the for the evaluate. Okay, so for example, if you want to delete 99, now this looks like a complicated scenario, but it's as simple as the previous ones. If I just want to delete 99 from this tree, what I would do is that I find 99 first. From 42, I would go to right and then further right, and I would find 99. Then if I want to delete it, I just replace its child here. So if 92 and the entire subtree with it comes in place of 99, the tree would be fine, right? It would again be a BST, and I would release the memory of 99. So that's very simple. Again, so I've shown you multiple scenarios for multiple cases for one scenario. Okay, so I hope it's clear. Okay, so we can move on to the next case. So now the problem is if we want to delete a node with two children like this one here. So how can we adjust these two children into the resultant tree? Any guess? The goal is only that we want to join these two children with the previous tree, with the tree that is remained after this after the removal of this parent. Can we just move this right child in place of the parent, or we move this left child in place of the parent, or do something else? Okay, let's see the scenario when we move this right child in place of the parent. What the problem would be that this child may also have further children, and it can be a complete tree, right? A complete subtree below this right child. So if I move it here, where would this left child would go? So that's the problem. The node that I'm moving up in the tree, it already have a subtree below it, right? So I cannot adjust this left pointer somewhere in this tree. Or can I? Quick guess if you can pick the point here, because we just want to make a logic. How can we readjust the tree? सर जस्ट अ गेस सर मेरे ख्याल से ना जो दो चाइल्ड हैं इन दोनों को कंपेयर करेंगे और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी जो लाइक वो ऊपर आ बिगर जाएगी। वैल्यू, ठीक है। तो बिगर वैल्यू कौन सी होगी? कंपेयर करने की जरूरत है क्या? हाँ सर सॉरी राइट वाली तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगी ना फिर। ठीक है, तो राइट वाली तो बड़ी वैल्यू ही है ना, कंफर्म है। तो ऊपर जाने की बात मैंने नहीं की, मैंने ये कहा है कि इनमें से बड़ी तो डेफिनेटली राइट वाली है यस सर। है ना। लेकिन मसला ये है कि राइट वाले के दोनों चिल्ड्रन मौजूद हैं। सर फिर हम यूं कर सकते हैं कि उसके लेफ्ट वाले चाइल्ड को कंपेयर करेंगे नीचे वाले से। आप राइट चाइल्ड के लेफ्ट पे जा रहे हैं? यस मैम, यस सर, ये ऐसी है। अच्छा, राइट चाइल्ड के लेफ्ट पे जाने से क्या मिलेगा? सर हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना, अगर सर नहीं, वैल्यू अगर अच्छा चलिए, फॉल मैं आपके क्वेश्चन को मजीद आगे लेकर चलता हूँ। ठीक है, आप अच्छी डायरेक्शन पे जा रहे हैं, यही डायरेक्शन हमने लेके जानी है।
In fact, I would want other people to contribute as well. कुछ लोगों को मैं देखना जो कि शुरू से खामोश बैठे हैं। हुसैन आप एक्टिव हो, साकिब, शेजिल, अहमद से मैंने क्वेश्चन पूछा, हाजिब भी बीच में अपने कमेंट्स दे रहे हैं, तो कुछ लोग जागे में, ठीक है। हनान आपका भी कमेंट है, ठीक है। तो द ओनली पर्सन हु इज नॉट टॉकिंग इज हादिया। कोई और भी है? अच्छा ठीक है, चलिए जी, सब लोग जागें जी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर आपको ये लॉजिक समझ आ जाए तो अगला जो हमने इसके बाद एवियर ट्री डिस्कस करने वो भी आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। शेजिल ने कहा है, ये हाजिर के क्वेश्चन से आंसर से डिस्कस करते हैं, राइट मोस्ट स्मॉल वैल्यूज और द लेफ्ट मोस्ट हाईएस्ट वैल्यूज, ये कैसे पता चलेगा? शेजिल सेज राइट लीफ नोड विल बी हाईएस्ट इन लेफ्ट सबट्री। ठीक है, ये तो ये बात मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ट्री ही आपको दिखा दूं, या चले लेट्स सी दिस ट्री। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिलीट करना चाहूँ रूट को, इफ आई वांट टू डिलीट दिस नोड 10, और इसके चिल्ड्रन देखें तो राइट पे बड़ी वैल्यू है, लेफ्ट पे छोटी वैल्यू, डेफिनेटली ऐसे ही है। अच्छा, जो शेजिल आपने एक्सप्लेन किया, इट वाज के इफ आई वांट टू डिलीट 10 in its left subtree I have the highest value, मतलब इनफैक्ट अगर सिर्फ इसी ट्री को कंसीडर किया जाए और I ask you कि which one is the largest value in this tree, you don't need to search it. What you can do is कि largest value would be towards right of the root node and then further right of the children. So what I would do is कि I would just run a while loop and move towards right until I find a null node on the right of some node. So this rightmost node is the largest value in a subtree. ठीक है जी। तो अगर मुझे बड़ी वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, आई वुड जस्ट कीप मूविंग टुवर्ड्स राइट 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 राइट, and if I find a node which has a null pointer on its right side, it means this is the largest value. Even if it has left children, those values will be smaller than this value. So 45 is the largest value in this tree. Similarly, if I want to find the smallest value in this tree, what I would do is I would keep moving towards left. So from 10, I would move to 5, then I would move to 10. So I have this move to 2. So this 2 is the smallest value in the tree because it is the leftmost value. It does not have a left child. It can have a right child, which would of course be bigger than 2. So 2 is the smallest value in the entire tree. So and I talked about this, considering that this tree that I've shown on the slides, this is a subtree. It could have a tree on with which it is attached, but still we can find a smallest value or the largest value in a subtree. So let's consider this tree as a complete tree and we want to delete this 10. What I can do is I can find the largest value in the left subtree. Okay, so in the left subtree, I have these two nodes. I would like to find the largest value, so I would move from the root of this subtree towards right. तो 5 के right पे कुछ भी नहीं है, तो this 5 is the largest value. ठीक है। अच्छा, दूसरा सिनेरियो भी देख लेते हैं कि if I want the largest value, or the other way around is if I want to delete this 10, what I can do is I can just move towards its right, and in this right subtree, I would like to find the value which is the smallest in this subtree. So that would be 25. Move towards left from this 30. So I would find this 25 as the smallest value. So why I've tried to find two different values, I can use either of them to readjust the tree. I can use 5 or I can use 25 to readjust the tree. So the readjustment is that there are in fact two scenarios that I can use, but here I'll discuss only one scenario. Okay, so the scenario is that in these slides that I've actually shared. जी जी सर, ये हम स्मॉलेस्ट वैल्यू क्यों ढूंढ रहे हैं सर? हम दोनों में से कोई भी ढूंढ सकते हैं। हम चाहें तो लेफ्ट सब ट्री में लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढ लें या राइट सब ट्री में स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढ लें। ठीक है, अब इनकी ढूंढने की वजह मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
इनको ढूंढा इसलिए है कि ये दोनों वैल्यूज, अगर मैं इन सारी वैल्यूज को एक सीक्वेंस में सॉर्टेड ऑर्डर में लिखता, तो ये जो 10 है ना, 10 की इमीडिएट नेक्स्ट वैल्यू 25 है और 10 से इमीडिएटली प्रीवियस वैल्यू 5 है। ये पिक किया था पॉइंट आपने कि एक्चुअली ये जो मैं दो वैल्यूज का कह रहा हूँ कि ये दोनों वैल्यूज मेरा सोल्यूशन का पार्ट बन सकती हैं, मैं इनमें से किसी एक को भी यूज कर लूँ, तो मैं एक्चुअली फाइंड ये कर रहा हूँ कि 10 की इमीडिएट नेक्स्ट या प्रीवियस वैल्यू कौन सी है। सही, ठीक है, ठीक। ठीक है, हाँ, तो अब आप पहुंच गए इसके पॉइंट तक कि हम कर क्या रहे थे। तो जब हमें ये पता चल गया कि असल में सोल्यूशन ये है कि जो जो नोड डिलीट हो रहा है उसकी इमीडिएट नेक्स्ट वैल्यू ढूंढ लें या इमीडिएट प्रीवियस वैल्यू ढूंढ लें। इन स्लाइड में हम नेक्स्ट वैल्यू को लेकर चलेंगे, ठीक है, वरना हम प्रीवियस को भी लेके चल सकते थे, दोनों में एक ही जितनी परफॉर्मेंस है। लेकिन इन स्लाइड्स में जो आपको एग्जांपल्स नजर आएंगी वो ये हैं कि वी आर फाइंडिंग द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द नोड दैट इज टू बी डिलीटेड। तो दैट वुड बी टुवर्ड्स the next value would be bigger than the value. So in the right subtree, I would find the smallest value. So 25 is the value that is the immediately next value of the 10. So अब मैं करूंगा क्या, मुझे अगर ये 10 डिलीट हो जाता है तो व्हाट आई कैन डू इज कि दिस राइट सब ट्री, द रूट ऑफ दिस राइट सब ट्री कैन रिप्लेस दिस 10, देन आई वुड हैव टू दिस लेफ्ट सब ट्री मिसिंग। ये प्रॉब्लम बचेगा ना कि अब लेफ्ट सब ट्री कहाँ पे जाए, क्योंकि 30 अगर इसको रिप्लेस कर लेगा तो ट्री वुड बी 30, 30 के लेफ्ट पे 25 एंड राइट पे 45। सो वे वुड दिस लेफ्ट सब ट्री 5 and 2 would go? So the answer is कि I would plug this subtree from the root node and attach it with the left side of 25. तो क्या बनेगा वाला, ठीक है जी। तो अगर 10 को यहां से मैं बिल्कुल ही रिप्लेस गायब कर दूं तो द फाइनल ट्री वुड बी लाइक दिस, 30, 30 के लेफ्ट पे 25 और जो उसके लेफ्ट पे हमने अटैच किया था दैट वाज दीस टू वैल्यूज 5 and 2। सो वी अटैच दोज वैल्यूज ऑन द लेफ्ट ऑफ 25, ऑलवेज ऑन द लेफ्ट। Can we attach these values on right of 25? नो सर, वो 5 छोटी है ना उससे, तो जी, लेफ्ट तो पहली चीज यही ध्यान रखनी है कि if I try to attach the left side of a node to its right subtree, तो हमेशा लेफ्ट पे इंसर्ट होगी, कभी उसके राइट पे नहीं जाएगी राइट सबट्री में, क्योंकि सारी वैल्यूज छोटी हैं। 5 और 2 दोनों वैल्यूज 10 से भी छोटी हैं। अगर इन्होंने 10 के राइट सबट्री में कहीं एडजस्ट होना है तो वो स्मॉलेस्ट साइड पे एडजस्ट होगा। तो 30 के लेफ्ट लेफ्ट जहां पे कोई और नहीं मिला तो उस जगह पे ये ट्री अटैच कर दे, बिकॉज दीज टू वैल्यूज शुड बी दी स्मॉलर वैल्यूज देन ऑल दीज वैल्यूज इन द राइट सबट्री। ये बात समझ आती है ना जी, कि ये जो 10 का राइट सब ट्री था उसमें जितनी भी वैल्यूज थी वो 10 से भी बड़ी थी, तो डेफिनेटली इस लेफ्ट सब ट्री से तो सारी ही बड़ी हैं। तो इस लेफ्ट सब ट्री को अगर मैंने अटैच करना है तो इस राइट सब ट्री के लेफ्ट मोस्ट पे कहीं अटैच कर देना, क्योंकि ये गारंटीड छोटी वैल्यूज है। तो आई हैव अटैच दिस टू वैल्यूज इन द ऑन द लेफ्ट ऑफ 25। सही हो गया जी, लॉजिक बन गई। चलिए जी, अब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। वैसे इसमें एक इशू भी है जो कि अभी आपने किसने पॉइंट आउट नहीं किया, देयर इज एन इशू जो कि आप बता सकते हैं कि सर ये क्या हो गया, ओरिजिनल ट्री एंड द रिजल्टेंट ट्री, कोई इशू नजर आ रहा है? थर्टी रूट बन गए जी, शेजल बैलेंस का फर्क पड़ गया, ठीक है जी। तो इशू ये बन गया कि 30 रूट नोड पे चला गया, लेकिन अब ये देखें एक ब्रांच कितनी लेंथी होगी, हमने पूरा लेफ्ट सब ट्री उठा के ट्री के नीचे एक साइड पे अटैच कर दिया, तो ट्री तो लेफ्ट पे कितना हैवी हो गया। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर आप नोट करें तो पहले जब मैं वैल्यू सर्च करता था तो सारी ब्रांचेस तकरीबन एक ही लेंथ की थी, विच वाज अ वेरी सिमेट्रिक शेप ऑफ द ट्री एंड द सर्च वाज वेरी एफिशिएंट। सारी वैल्यूज मैक्सिमम 2 स्टेप्स में मिल जाती थी। इट्स अ बीएसटी ना, तो हम हमेशा डायरेक्शन पता है कि किस ब्रांच पे जाना है। 25 फाइंड करना है तो 10 के राइट के लेफ्ट पे, अगर 45 फाइंड करना है तो 10 के राइट पे जाए, फर्दर राइट पे जाए तो 45, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट ब्रांच पता है कि बीएसटी, क्योंकि सर्च ट्री है तो हमें सर्च की डायरेक्शन पता है। तो अगर सर्च की डायरेक्शन पता है तो यहाँ पे दो स्टेप्स में मिल जाती थी वैल्यूज, जो मर्जी ढूंढ रहे होते। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो नाउ दी
longest branch is actually double in size. तो मेरी एफिशिएंसी वर्स्ट केस में डबल हो गई है, ठीक है, ये बुरी हो गई है, डबल नंबर ऑफ स्टेप्स डबल हो गई, ठीक है। तो ये इशू भी है, ठीक है। तो हम देख, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि वी हैव टू डिफरेंट वेज कि हम इसको एडजस्ट कर सकें। पहला वे ये वाला था जिसमें बैलेंस जो है वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो जाता है। तो वील सी के दूसरा तरीका क्या है, लेकिन पहले हम ये वाली इम्प्लीमेंटेशन देख लें, फिर हम जब दूसरे बैलेंस ट्री की तरफ जाएंगे तो फिर हम बैलेंस वाली इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो पहले ही देख लें। अच्छा, अब ये थोड़ी सी रिवीजन है। अब आप लोग जल्दी से इस कोड को रिव्यू करें एंड जस्ट टेल मी कि व्हाट विल बी द आउटपुट। जल्दी से देखें जरा, व्हाट्स द आउटपुट ऑफ दिस कोड। सिर्फ 1? अच्छा जी, क्यों 1 होगी जी? तो कोड क्या है कि वी हैव अ ग्लोबल वेरिएबल, देन वी हैव दिस फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के बाद ऊपर जब बाद में जाते हैं, मेन में वी हैव अ लोकल वेरिएबल विच हैज अ वैल्यू 2. I store the address of this variable in the pointer, then I pass this pointer to the function. In the function, what I do is I just this pointer, I just change the address and in this pointer I assign the address of the global pointer, right? So now this pint has the address of this g1. Okay, this function terminates, I come back to the main and I print the value of the uh, after dereferencing the pointer. So this p where this pointer, what's the address that it has? That's the question. So now let's compare this output with this code. Just point out the difference. What's the difference in these two codes? सर वो %% का मेरे ख्याल से जी, तो parameter in the function is a reference to a pointer in the second code. Okay, it is the reference to the pointer, right? In the first code it was just a pointer, copy of the pointer. So what happened here is when I pass this p variable into the function, I created a copy of this pointer. So in essence what I have now is that, for example, if I had this p variable, so I had this pointer here, this memory, and for example this n variable has address, for example 1, so it had the value 1. Okay ji, I passed this pointer into the function, I created a copy of this pointer. Okay, so this is the copy of the pointer and it has the value 1 because it's the copy, it contains the same value, lekin it's on some other memory. Okay, so there are now I have two pointers, one in the main and one in the function, both containing same address. Then I changed the address of this pointer in the function. So for example, this g1 had the address 2. When I changed the address, so the second pointer now contains the address 2. Okay. After the function is terminated, this memory is deallocated, and when I come back to the main, this memory is again used. So when I display the value in this memory, it would be the memory of this address 1, which is n variable, यानी कि जो value display होगी that is 2. ठीक है जी। तो मसला क्या बना था कि I passed the copy of the pointer, so this is a separate pointer, not the one that I have in the main. Okay. For the second code, what I have is when I pass this p variable into the function, I actually pass its reference into the function. It means this is the same pointer. I only have one copy of a pointer that initially contained the address of n variable, that was 1, for example. Then I changed the address in this pointer. So this same memory is affected. Now it contains the address of the global variable. For example, the address is 2. So now I have 2 in this pointer. And when I display the value here, it accesses the memory of this global variable and the output is 1. Okay, ji? So this code is only to revise the concept of passing a variable by reference into a function. Okay, ji? So specifically, this variable is of type pointer.
तो when I pass this pointer into the function as a reference, if I change the address in this pointer, this actually change is reflected into the main function as well. ठीक है, ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। अब इसको मैंने डिलीट के कोड में ऐसे यूज करना है कि जब आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये जो फॉर एग्जांपल 25 है, या फॉर एग्जांपल से भी चलते हैं, जब आप वन चाइल्ड वाली बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल ये वाली, कि ये 99 अगर डिलीट हो जाता था तो 92 इसकी जगह पे कैसे आता था? तो अगर मैंने 99 वाले पॉइंटर को बाय रेफरेंस पास किया हुआ था फॉर एग्जाम्पल फंक्शन में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिंपली इस पॉइंटर में नया एड्रेस स्टोर कर दूं 92 वाला, तो क्या बनेगा? जो 92 है वो अटैच हो जाएगा 70 के साथ, क्योंकि 70 का राइट चाइल्ड एज अ रेफरेंस पास किया था, उसमें पहले 99 का एड्रेस पड़ा हुआ था, मैंने उस पॉइंटर पे एड्रेस दे दिया 92 का, तो ये 99 वाला एड्रेस तो 70 के राइट से गायब हो गया ना, तो 92 उसके साथ अटैच हो गया। हाँ, ये जो 99 वाला एड्रेस है इसको मैं फंक्शन में डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई एक्चुअली यूज दिस पॉइंटर टू रेफरेंस इन द डिलीट। सी, अब आप देखिए कोड में तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो अच्छा, अब हम कोड पे आ जाते हैं। वी डिस्कस दिस skeleton बिफोर। We would use this public function remove from the main, and we would pass the value. This function would call delete node and pass the root as the starting point with this value. And this delete node would actually find the value, which find the node that needs to be deleted, and when the node is found, then it would call this make deletion to remove that node from the memory. ठीक हो गया जी? तो देखें तो I have this reference pointer here. I also have the reference pointer in the make deletion function. So it means कि I would adjust the pointers here in this code. ठीक है जी? तो सबसे पहले I have this delete node function. Very simple. It has the number and the root pointer initially. What I do here is कि I just try to find the value. So if the value is smaller than the value in the root node, I would actually call the recursive, I would actually recursively call this function with the, if the value is smaller, then I would go to the left of the root node. ठीक है, तो क्या किया कि जो वैल्यू थी उस वैल्यू को रूट से कंपेयर किया, अगर तो वैल्यू छोटी थी तो लेफ्ट पे गए, डेफिनेटली जो ऊपर जगह छोटी छोड़ी हुई है ये उस काम के लिए कि अगर वैल्यू मैच कर जाए, रूट पे जो वैल्यू पड़ी है उसी ने डिलीट होना हो, तो यहाँ पे वो कोड आएगा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरा केस ये है कि अगर जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू के केस में हम चले जाएंगे कहाँ पे? टुवर्ड्स द राइट, तो रिकर्सिव कॉल राइट पे चल जाएगी। लेकिन ये ध्यान में रखें कि इस डिलीट नोड के पास ये जो पॉइंटर जा रहा है ना, ये पेरेंट के राइट का रेफरेंस जा रहा है। दैट्स अ रेफरेंस, रिमेंबर वी हैव दिस रेफरेंस हियर। तो नेक्स्ट कॉल के पास एग्जैक्टली पेरेंट के इस केस में राइट का रेफरेंस मौजूद है, यहाँ पे पेरेंट के लेफ्ट का रेफरेंस मौजूद है, तो अगर इंटरनल कॉल जो है वो रेफरेंस में नया एड्रेस स्टोर कर देती है तो रूट के लेफ्ट पे या राइट पे वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे था कि अगर नोड है ही ना है तो ये तो बेस केस आ गया कि वैल्यू मिली ही नहीं है, वैल्यू नहीं मिली है तो डिलीशन हो नहीं सकती है, तो उस केस में तो हम वैल्यू नॉट फाउंड का मैसेज दे देंगे। ठीक है, वैल्यू छोटी है तो लेफ्ट पे चलेगी, वैल्यू बड़ी है तो राइट पे चलेगी। अब केस आ गया कि इसके अलावा केस क्या है कि आदिया, अगर आप कुछ बताएं यहाँ पे। रिमेंबर बी अटेंटिव जी। फॉर एग्जांपल सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये है कि ये जो एम्प्टी प्लेस बची हुई है नीचे, इसमें कौन सा केस रह गया? लेफ्ट का कर लिया, राइट का कर लिया? ठीक है जी, शेजिल आपने आंसर कर दिया, हादिया यानी कि अवेलेबल नहीं है आज। अच्छा जी, तो नंबर की वैल्यू अगर इक्वल है तभी, ठीक है, तो एल्स इफ लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लेस भी नहीं है ग्रेटर भी नहीं है, तो द वैल्यू इज इक्वल, देन आई कॉल दी मेक डिलीशन। इट मींस कि ये एग्जैक्टली फाइंड के कोड का स्केलेटन नहीं है रिकर्सिव कॉल। अगर मैं आपको कहता कि फाइंड का रिकर्सिव कोड लिखें तो वो ये वाला कोड था। ऐसा ही है, सब समझ लेना बात, कि मैं अगर ये डिलीशन की जगह यहाँ पे सिंपल सी आउट कर देता कि वैल्यू मिल गई है, तो डेफिनेटली ये फाइंड का कोड था।
या सर्च का कोड था। तो दैट्स द रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फाइंड। लेकिन क्योंकि डिलीशन है तो डिलीशन में जब वैल्यू मिल गई है तो उसके ऊपर डिलीशन कॉल कर दी कि डिलीट दिस नोड जिसके पास वैल्यू मौजूद है। अब ये ध्यान में रखें कि जिस नोड को हम डिलीट के लिए पास कर रहे हैं, दिस इज द रेफरेंस टू इट्स पेरेंट, मतलब पेरेंट के लेफ्ट या राइट चाइल्ड का रेफरेंस। तो मेक डिलीशन में मैं एक्चुअली इस पॉइंटर में कोई और एड्रेस स्टोर कर दूंगा। ठीक है, सेंस समझ आ रही है? जो स्कोर में पीछे भी दिखाया था कि मैं अगर फंक्शन में जो पॉइंटर का रेफरेंस आया उसमें कोई और एड्रेस स्टोर कर दूं तो ओरिजिनल पॉइंटर में चेंज हो जाता है। आप देखें कि यहाँ पे ये जो नोड पीटीआर है, अगर फॉर एग्जांपल इससे पहले वाली कॉल ये थी फॉर एग्जांपल कि जो नंबर ढूंढ रहे थे वो पेरेंट की वैल्यू से छोटा था, तो मैंने पेरेंट का लेफ्ट की कॉल की थी, तो नाउ दिस इज पेरेंट का लेफ्ट। और अगर मैं यहाँ पे कोई नया एड्रेस स्टोर कर दूं तो पेरेंट के लेफ्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो बाय रेफरेंस पास किया मेक डिलीशन में भी। तो अब मेक डिलीशन का कोड क्या कर रहा है? मेक डिलीशन में हमने जो नोड पास किया था, हमने किया सिर्फ ये कि अब हमने ये जो नोड है इस नोड को एक्चुअली रिमूव करना है। लेकिन रिमूव करने का अब यहाँ पे वो केसेस है, वैल्यू मिल गई, अब आगे क्या करना है? तीन केसेस आइडेंटिफाई करने हैं, इधर इट्स अ लीफ नोड और अ नोड विद वन चाइल्ड और अ नोड विद टू चिल्ड्रन। तो वन बाय वन को चेक करते हैं। सबसे पहले हमने कहा जी कि अगर इफ नोड पीटीआर राइट इज नल, इट मीन्स कि अभी आई हैव नॉट चेक कि लेफ्ट पे क्या है, लेकिन राइट इज नल। राइट नल है तो ये तो गारंटीड है कि इट डज नॉट हैव टू चिल्ड्रन। इट माइट हैव वन चाइल्ड लेकिन इट डज नॉट हैव टू चिल्ड्रन। ठीक है जी, तो अगर एक चाइल्ड है तो क्या किया जा सकता है? जो चाइल्ड है वो लेफ्ट वाला चाइल्ड है, तो जस्ट अटैच लेफ्ट चाइल्ड दे ना। तो हम क्या करेंगे कि हमने टेम्प नोड में ये वैल्यू, ये टेम्प में बेसिकली हमने डिलीशन करनी है, तो वी जस्ट कॉपीड द एड्रेस इनटू द टेम्प। ठीक हो गया, जिस नोड ने डिलीट होना उसका एड्रेस टेम्प में चला गया। अब उसके बाद ये जो नोड पीटीआर है ये वो रेफरेंस था जो कि पेरेंट के साथ कनेक्टेड था ना, या तो पेरेंट के लेफ्ट पे था या राइट पे था। तो अब इसमें मैं नया एड्रेस स्टोर कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर नया एड्रेस क्या स्टोर किया कि जिस नोड ने डिलीट हुआ उसके लेफ्ट पे जो कुछ था वो अटैच कर दें। तो बेसिकली जो सिनेरियो बना वो कुछ ऐसा बना कि हमारे पास जिस नोड ने डिलीट होना था वो ये वाला नोड था, और हमने ये चेक किया कि उसके राइट पे नल है। सही है, और क्योंकि ये रेफरेंस के तौर पे आया था तो उसके पेरेंट का भी हम यहाँ पे ये जो राइट वाला पॉइंटर है इसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट या लेफ्ट कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे मैंने राइट जान के बना दी, पेरेंट का ये लेफ्ट चाइल्ड भी हो सकता था। तो अगर ये राइट चाइल्ड था पेरेंट का तो ये जो भी पॉइंटर था उसका रेफरेंस मेरे पास मौजूद है। तो मैंने किया ये कि ये जो नोड है इसने डिलीट होना है, तो इस नोड के लेफ्ट पे कुछ भी जो भी था, नल भी था तो भी, अगर यहाँ पे कोई पूरा का पूरा ट्री था तो ट्री का रूट यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज नल था तो नल आ जाएगा। किया क्या है कि मैंने ये जो पॉइंटर था इस पॉइंटर में एड्रेस दे दिया इस वाली साइड का। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको कह देता हूँ कि एक्स ने डिलीट होना है और ये है फॉर एग्जांपल वाई, तो वाई ने इसकी जगह रिप्लेस होना है। तो मैंने रिप्लेस किस तरीके से किया कि मैंने ये किया कि नोड पीटीआर जो कि इस पेरेंट का जो भी करस्पॉन्डिंग चाइल्ड ये एक्स था वो उस पॉइंटर का रेफरेंस है, तो आई जस्ट चेंज द एड्रेस इन दैट रेफरेंस। तो एड्रेस किसका दे दिया? दिस वाई नोड, तो वाई आ गया एक्स की जगह पे। तो यही केस था ना जब वी वांट टू डिलीट अ नोड विद वन चाइल्ड, तो विदाउट कंसिडरिंग कि ये वन चाइल्ड वाला ही केस है, हमने कहा कि अगर राइट चाइल्ड नहीं है तो लेफ्ट पे जो भी है वो इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाए। दैट कुड बी नल नोड, लेकिन अगर नल नहीं भी है तो भी ये केस ठीक तरीके से हैंडल हो गया। अच्छा, नाउ let's move on to the next case. The next case is कि else if node ptr left is equal to null। तो ये कौन सा सिनेरियो है बना? कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? सर लेफ्ट वाला तो होगा, तो राइट वाला होगा ना फिर। जी, इसका मतलब ये है कि राइट नल नहीं था और लेफ्ट नल था। इट मीन्स कि नाउ इट इज गारंटीड अ केस कि द नोड हैज अ लेफ्ट, द नोड हैज अ राइट चाइल्ड लेकिन इट डज नॉट हैव अ लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, तो ये वाला केस ये है कि जिस नोड ने डिलीट होना है उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तभी मैं इस एल्स में आया हूँ, वरना मैं एल्स में ना आता, क्योंकि वो यहाँ पे चेक होता है कि राइट नल है कि नहीं। लेकिन अब दूसरा केस भी उन्होंने चेक कर लिया कि लेफ्ट पे नल था। तो दिस इज द केस कि हमारे पास एक नोड जो डिलीट हो रहा है इट हैज अ वन राइट चाइल्ड। तो अगर राइट चाइल्ड है तो मैंने यहाँ पे इस नोड का अपना एड्रेस तो कॉपी किया लेकिन इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया राइट चाइल्ड को।
ठीक है, तो ये जो राइट चाइल्ड था ये इस जगह पे चला गया। ठीक है, मैंने रेफरेंस में नया एड्रेस स्टोर कर दिया। दिस इज हाउ आई रीअटैच दी चाइल्ड विद द पेरेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन शुरू में एक बच्चे ने पूछा था, ठीक है, याद है सबको, कि हम किस तरीके से करते हैं, टेम्प नोड कहाँ पे होगा तो पेरेंट पे कैसे जाएंगे। तो वी हैव द रेफरेंस टू द चाइल्ड ऑफ द पेरेंट, तो हम उसमें नया एड्रेस स्टोर कर देते हैं। तो ये दो केसेस हो गए। ये वाला केस बेसिकली दोनों चीजों को कवर कर रहा है कि द नोड विद वन लेफ्ट चाइल्ड और अ लीफ नोड। पहला केस दोनों को कवर कर रहा है, और जो दूसरा केस है वो सिर्फ इसको कवर कर रहा है कि नोड हैज वन राइट चाइल्ड एंड इट डज नॉट हैव अ लेफ्ट चाइल्ड। दोनों केसेस हो गए जिसमें ना लीफ नोड और वन चाइल्ड वाले केस कवर हो गए। अब तीसरा सिनेरियो आ गया कि इसके दोनों चिल्ड्रन है। तो अगर दोनों चिल्ड्रन है तो व्हाट आई डू इज कि मैंने नोड के राइट पे जाना है और राइट सब ट्री में सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट आई डू हियर इज कि आई फाइंड द I go into the right, I copy the address of right child in the temp, then I move towards the left of temp. So while time left is not null, I update the temp as the left of it. तो होगा क्या कि हम लेफ्ट 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 चलते जाएंगे, और जब ये लूप ब्रेक करेगी तो जो नोड होगा उसके लेफ्ट पे कुछ नहीं होगा। और अगर नए नोड के, ये हमें गारंटीड है कि इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता था, लेकिन अगर राइट चाइल्ड का ही लेफ्ट नहीं है तो ये लूप इनिशियली ही ब्रेक कर जाएगी और हम राइट चाइल्ड पे ही वेट करेंगे। तो राइट चाइल्ड इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द राइट सब ट्री इन दैट केस। तो अब टेम्प नोड में वो वाला नोड आ गया, वो वाला नोड आ गया जिसके पास सब्सिक्वेंट वैल्यू ऑफ द डिलीटेड नोड है। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है, अब ये भी देखिए एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि एक गारंटी और भी हमें मिल गई। जब हम राइट सब ट्री के एक्सट्रीम लेफ्ट पे गए हैं तो गारंटी ये मिली है कि इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। क्या फायदा हुआ भला इस बात का? कोई केस तो नहीं आइडेंटिफाई हो गया डिलीशन का? नहीं, मिनिमम वैल्यू तो फाइंड होगी, लेकिन ये भी पता चल गया कि इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। ठीक है, चलिए अभी चलिए सिंपल कर देता हूँ कि अगर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो वो जो लेफ्ट सब ट्री था वो इसके नीचे अटैच हो सकता है लेफ्ट पे। तो ये नोड पहले ही वो स्पेस खाली रख के बैठा हुआ है जहाँ पे नया नोड, नया चाइल्ड अटैच होना है। ठीक है जी, तो हमने किया क्या जी कि ये नोड पीटीआर का लेफ्ट, नोड पीटीआर ने डिलीट होना था ना, तो उसका लेफ्ट जो है, एक्चुअली हम ये वाले सिनेरियो नहीं, इनफैक्ट लेट मी एरेज दिस, मैं दोबारा सिनेरियो ड्रा करता हूँ कि व्हाट आई हैव हियर इज के जिस नोड ने डिलीट होना है उसके लेफ्ट पे कोई सब ट्री मौजूद था। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों चिल्ड्रन है। हम राइट साइड पे गए थे और राइट साइड पे हमने यहाँ पे इस राइट सब ट्री में हमने फाइंड किया था एक्सट्रीम लेफ्ट पे नोड यहाँ पे। तो जो नोड मिला हमें इस जगह पे, हमने करना ये था कि ये जो नोड पीटीआर, ये जो जिसने डिलीट होना था, इसके लेफ्ट पे जो सब ट्री है वो इधर नीचे अटैच करना है हमने, ऐसे ही। तो हमारे पास ये वाला ट्री जो है ये इधर नीचे यहाँ पे आके अटैच होगा। तो अब ये वाला सिनेरियो है कि नोड पीटीआर लेफ्ट, यानी कि ये वाला जो सब ट्री है, ठीक है, ये जो सब ट्री है, सब ट्री को हमने उसका एड्रेस उठाया और कहाँ पे असाइन किया, टेम्प नोड पीटीआर, जिसको हमने फाइंड किया था एक्सट्रीम लेफ्ट पे। तो हमने इसके ये जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी इसके लेफ्ट पे असाइन कर दिया डिलीटेड नोड के लेफ्ट को। तो ये वाला पूरा सब ट्री इस मिनिमम के नीचे यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है जी, तो उसके बाद हमने क्या किया कि ये नीचे अटैच हो गया। अब हमने मूव ये करना था कि ये जो राइट चाइल्ड था ना, इसको फॉर एग्जांपल मैं वाई कहता हूँ, तो ये जो वाई नोड है, इस वाई नोड ने इस डिलीटेड नोड की पोजीशन पे जाना है, तो ये वही रेफरेंस से हो जाएगा। तो हमने टेम्प नोड के अंदर नोड पी, अब ये वही वाला कोड है जो ऊपर वाली स्लाइड, ऊपर वाले केसेस में भी था, डिलीट को छोड़ के। हमने नोड पीटीआर का एड्रेस कॉपी किया, इसने डिलीट होना है बाद में, और हमने उसके राइट को इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, तो जो ये जो y था, ये y इसकी जगह पे आ गया। ठीक है, तो ये वाली लाइन वही है जो ऊपर वाले केसेस में भी थी, पहले वाले दो इफेक्ट्स में भी थी। सही है, अच्छा जी। तो आखिरी लाइन, मतलब इनफैक्ट तीनों लाइनें वो ये इनमें भी डिलीट यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, ये भी डिलीट हो रहा था, यहाँ पे भी डिलीट हो रहा था, और यहाँ पे भी डिलीट हो रहा था। तो बेसिकली जो डिलीशन है ये उसके बाद टेम्प के ऊपर परफॉर्म हो जाती है। तो ओरिजिनल नोड की मेमोरी जो थी वो डीएलोकेट हो जाती है, और ये जो उसके किसी जिस चाइल्ड को हमने रिप्लेस करने का सोचा था वो चाइल्ड इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाता है।
तो दैट्स द कोड ऑफ डिलीशन। समझ आ गई सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है हो? अच्छा जी, लास्ट 4 लाइन्स को एक्सप्लेन करूं। यहाँ पे किया ये कि इस लूप को चलाने के बाद मैं नोड पे पहुंच गया जिस जो कि मिनिमम है इन द राइट सब ट्री। ठीक है, तो वो जो मिनिमम नोड था, ये मिनिमम, इसको टेम्प नोड पीटीआर की जगह आप मिनिमम भी कह सकते हैं। तो मिनिमम नोड जो है उसके लेफ्ट पे मैंने क्या अटैच किया, जिस नोड ने डिलीट होना था उसका लेफ्ट चाइल्ड। तो बेसिकली मैंने इस पूरे के पूरे सब ट्री को यहां से पिक किया और इस मिनिमम नोड के लेफ्ट पे अटैच कर दिया। ये वाली एक कॉल ये कर रही है कि नोड पीटीआर का लेफ्ट, यानी कि ये वाला पार्ट इज, ये किसको मिल गया, ये मिल गया मिनिमम नोड के लेफ्ट को। तो मिनिमम नोड का लेफ्ट पहले नल था, उसकी जगह पे हमने, नल की जगह पे हमने डिलीट होने वाले नोड का लेफ्ट असाइन कर दिया। तो हमने ये वाली लाइन से अचीव कर लिया वो जो रीस्ट्रक्चरिंग थी। जिस नोड ने डिलीट होना है उसका लेफ्ट चाइल्ड उठाया, लेफ्ट सब ट्री उठाया और वो उसके राइट साइड पे जाके अटैच कर दिया मिनिमम साइड पे। हमने ये लाइन से वो काम किया। ये मिनिमम सब, ये छोटा सब ट्री लेफ्ट सब ट्री है, ये जाके मिनिमम के लेफ्ट पे अटैच हो गया। उसके बाद हमने ये जो 3 लाइन है इनमें सिंपल ये किया कि जिस नोड ने डिलीट होना है उसका एड्रेस कॉपी कर लिया टेम्प में और टेम्प को डिलीट किया आखिरी लाइन पे। लेकिन उससे पहले क्या किया था कि जो जहां पे पहले ये नोड था उस जगह पे नया एड्रेस स्टोर कर दिया जो कि इसके राइट का था। ठीक है, जो अगर आप पिछली एग्जांपल देखें तो ये वाली एग्जांपल थी कि हमने 10 को डिलीट करना था, तो 10 के राइट पे गया 30 के लेफ्ट पे लूप चलाई, 25 मिल गया। हमने 25 के लेफ्ट पे 5 एंड 2 को अटैच किया। तो ये जो आखिरी वाला सिनेरियो था ये वाला, ये 5 और 2 इसके लेफ्ट पे अटैच हो गए। और ये जो 30 था, 30 ने 10 की प्लेस भी ली थी, तो 30 ने 10 की प्लेस ली, तो 30 ने 10 की प्लेस ली यहाँ पे नोट पीटीआर में नया एड्रेस स्टोर कर दिया। ठीक हो गया जी? तो अगर कंफ्यूजन है तो भी पूछ सकते हैं। सर ये 10 का एड्रेस तो होगा ना किसी टेम्परेरी पॉइंटर में, सर वो किधर किस लाइन में बताया आपने? हमने ये नोड का एड्रेस कॉपी किया टेम्प में ना, क्योंकि नोड के अंदर हम नया एड्रेस स्टोर करने लगे हैं। तो ये नोड से जो हाँ, एड्रेस था वो इधर कॉपी किया ना। अब ये वाला जो एड्रेस टेम्प नोड पीटीआर में इसने डिलीट होना है, अच्छा तो अच्छा इसको अच्छा ये अच्छा, लास्ट लाइन पे डिलीट कर रहे हैं। ठीक। तीनों केसेस में इसी तरह हो रहा है। ठीक है, इस केस में भी यहाँ पे डिलीट हो रहा है, उससे पहले भी वहां पे डिलीट हो। ठीक है जी, तो दीज आर द केसेस के हम डिलीशन कैसे करते हैं। ओके जी, तो अगर फॉर एग्जांपल वही सिनेरियो देखें तो ओरिजिनल ट्री जो था उसमें 25 के नीचे, तो इसमें इशू ये था कि ये बैलेंस खराब हो जाता था। ठीक है, तो वी सॉ कि ये दिस नॉच बिकम्स टू लॉन्गर और हमारी परफॉर्मेंस जो थी वो एक्चुअली हाफ हो गई है, या जो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो तकरीबन डबल हो गए। पहले 2 स्टेप्स में हर वैल्यू मिल जाती थी, अब 4 में मिल रही है। ठीक है, तो दैट्स द केस। तो इसको ठीक करने का तरीका, जो दूसरा तरीका है जो कि हम अगले इम्प्लीमेंटेशन में यूज करेंगे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ हाजिर, मैं अभी वही डिस्कस कर लेंगे कि इम्बैलेंस को ठीक कैसे करना है। तो इम्बैलेंस को ख़त्म करने का तरीका ये था कि जब हमने 25 यहाँ पे ढूंढ लिया था, तो ये 5 और 2 को अगर इसके लेफ्ट पे ही अटैच करना है, 5 और 2 वो है ना जिनका पेरेंट डिलीट हो गया, 10 डिलीट हो गया, तो अगर इसको नीचे अटैच करना है तो हम बजाय इसके कि पूरा ट्री रिस्ट्रक्चर करें, क्यों ना हम 25 को उठा के 10 की जगह पे रिप्लेस कर दें। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? कि हम करें क्या, कि हम 30 का लेफ्ट चाइल्ड 25 मतलब लेफ्ट सब ट्री में सबसे छोटी वैल्यू जो है उसको फाइंड कर लें और वो वैल्यू 10 की जगह पे लिख दें। तो क्योंकि हमने कहा था कि दैट इज द सब्सिक्वेंट वैल्यू ऑफ 10, 10 के बाद इसने आना था, तो अगर ये 10 की जगह पे चली जाएगी और 10 डिलीट हो जाएगा, तो इसके भी लेफ्ट पे सारी छोटी वैल्यूज और राइट पे बड़ी रह जाएंगी। 25 रूट बन सकता है ना अगर 10 डिलीट हो जाए तो, है ना? तो यही हम कर सकते थे। तो हमने क्या कर सकते थे कि हम रिप्लेस कर सकते थे डिलीटेड नोड को राइट सब ट्री में सबसे छोटी वैल्यू से या लेफ्ट सब ट्री में सबसे बड़ी वैल्यू से।
दोनों से कर सकते हैं। तो हमारी इम्प्लीमेंटेशन ये कि राइट सब ट्री में सबसे छोटी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ट्री इस तरीके से बन सकता है। तो आप देखें तो किसी ब्रांच की लेंथ लंबी नहीं हुई। और जो डिलीशन परफॉर्म हुई है वो कहाँ पे है, देखें 25 की वैल्यू या जो डाटा था, आई जस्ट कॉपी दिस डाटा इन द रूट नोड। तो अब मेरे पास दो कॉपीज 25 की बन जाती है, एक उसी पोजीशन पे जहाँ पहले था और एक रूट नोड पे भी। आई विल परफॉर्म द डिलीशन, मुझे डिलीशन तो कहीं परफॉर्म करनी थी ना, तो आई विल परफॉर्म द डिलीशन ऑन द लेफ्ट ऑफ 30। सही हो गया। तो इस पोजीशन पे मैं डिलीट परफॉर्म करूंगा और जो वैल्यू है वो ऊपर पहले कॉपी कर चुका हूँ, तो ये वाली मेमोरी रिलीज होगी। मेमोरी रूट वाली रिलीज नहीं होगी, मेमोरी नीचे से 25 वाली रिलीज होगी। और अब मुझे इसकी गारंटी है कि ये 25 का लेफ्ट चाइल्ड तो है ही नहीं ना, तो पॉसिबली 25 का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर सकता है। तो दिस केस इज रिड्यूस्ड टू द केस के द नोड दैट इज डिलीटेड, दैट इज बीइंग डिलीटेड, इट हैज ओनली वन चाइल्ड। ठीक है जी। दैट्स द सिनेरियो कि जिसमें हम वैल्यूज को नीचे से यानी कि नीचे वाले लेवल से डिलीट करते हैं, ना कि हम ऊपर वाले रूट से डिलीट करते हैं। तो जो ऊपर वाले लेवल में वैल्यू डिलीट हो रही है उसके दो चिल्ड्रन है, तो हम उसके राइट सब ट्री में सबसे छोटी वैल्यू ढूंढेंगे, वहां वो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे रूट के साथ। अब जो नीचे वाली वैल्यू इसको डिलीट होना है, उस पर डिलीशन परफॉर्म करेंगे। तो दैट वुड बी द केस कि द नोड हैज ओनली वन चाइल्ड एंड आई वांट टू डिलीट दैट नोड। ठीक है जी। तो दैट्स सिनेरियो। अगर इस केस में देखें तो इफ आई वांट टू डिलीट 42 आई वुड गो टुवर्ड्स राइट, and in this right subtree I would go towards left, I would find 47 here. So I would move this 47 in the root and delete this memory 47. ठीक है जी। तो 47 is now repeated, is duplicated in the tree, and then I'll delete the 47 that is in the, that is on the lower level. तो 47 को delete करना was simple। ठीक है जी। तो दैट्स द इम्प्लीमेंटेशन जो कि बहुत आसान है इस केस में। अच्छा, हम इसको एवीएल ट्री में देखेंगे आगे। अगर फॉर एग्जांपल इन दिस केस आई अगेन डिलीट 47, व्हाट आई वुड डू इज के आई वुड गो टुवर्ड्स राइट एंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू दैट इज 51। आई वुड रिप्लेस 51 with मतलब I would move 51 on the root and then perform deletion here. So now this 51 has a child, this 59 it would become the child of its parent। ठीक हो गया जी। 51 रूट पे रिप्लेस हो गया तो इट्स डुप्लीकेटेड। नाउ आई वुड डिलीट दिस 51 ऑन द लोअर लेवल, ठीक है। तो दिस 59 becomes the child of 70। तो दिस 59 becomes the child of 70। दिस इज द फाइनल आउटपुट जो ट्री की बनेगी। तो यू सी कि इन दिस सिनेरियो, इन दिस implementation, the balance of the tree is of course it can be effective but not that much कि जितना पिछली दफा हो रहा था। जी। तो दैट्स अ बेटर सोल्यूशन। वी वुड यूज दिस सोल्यूशन इन अ ट्री जो कि बैलेंस ट्री होता है। So now if I just use the main function to use this implementation, I can create a node of this integer tree, then I insert a few values in this tree। So just on your paper can you draw the shape of this tree? I will insert 5 8 3 12 and 9। जल्दी से जरा प्रैक्टिस करें। मैं सिर्फ दो क्वेश्चन पूछूंगा। विच वन इज द रूट नोड एंड विच वंस बिकम द लीफ नोड्स? रूट इज 5 क्योंकि सबसे पहले इंसर्ट हुआ है, ठीक है। 5 इज रूट, ठीक है। अब लीफ फाइंड करें। 5 के बाद 8 इंसर्ट होगा, वे वुड इट गो? Then 9, sir. हाँ, 3 and 8 9, कहाँ right? जाएगा? 8 कहाँ जाएगा? The right to the 5, ठीक हो गया। उसके बाद 3 कहाँ जाएगा? left to the 5, लेफ्ट टू द 5, ठीक है। शेजर ने ट्री बनाया, ठीक है। और उसके बाद जब हम 12 इंसर्ट करेंगे तो इट वुड गो टू दी right to the राइट ऑफ 8, 5 एंड राइट ऑफ 8। उसके बाद 9 कहाँ जाएगा? शेजर जरा दोबारा देखें। 5 के then राइट पे जाएगा, 8 left से to बड़ी the वैल्यू। एक मिनट क्वेश्चन को से लेट मी जस्ट पोज अनदर क्वेश्चन
instead of just answering. तो 9 जो है 9 would go towards the right of 5. Then I would compare 9 with 8. 9 is bigger than 8. It would go to the right of 8. Then I would compare 9 with 12. ठीक है, तो 12 is smaller than 9. Sorry, 9 is smaller than 12. So it would be added to the left of 12. So the leaf nodes are 3 and 9. 12 is not a leaf node. ठीक है जी. तो जो आपने पहली शेजर ने पहला ट्री बनाया था उसमें बेसिकली बन रहा था, लेकिन असल में वो ट्री बीएसटी में बन नहीं सकता. 9 कैन नॉट बी ऑन द लेफ्ट ऑफ 8. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हो रही है थोड़ी सी. तो इफ आई नाउ शो इन ऑर्डर का तो आपने कोड देख लिया था. ठीक है, मैंने ये वही कोड एग्जैक्टली जो हमने बाइनरी ट्री में डिस्कस किया था. तो अगर इन ऑर्डर दिखाएंगे तो क्या बनेगा, पहले लेफ्ट पे जाएंगे, फिर रूट पे आएंगे, फिर राइट पे जाएंगे, ये सीक्वेंस बनता है. तो ये जो ट्री अभी शेजर आपने दिखाया इसका इन ऑर्डर रिवर्सल क्या होगा, पहले लेफ्ट पे जाएं, व्हाट विल बी द वैल्यू 3, उसके बाद रूट पे आए तो 5, उसके बाद राइट पे चलेगी, तो राइट पे जाए तो फिर वही बीएसटी है. तो पहले लेफ्ट है ही नहीं 8 का, तो 8 को डिस्प्ले हो जाएगा. फिर 12 पे जाएंगे तो 12 का लेफ्ट है, तो पहले लेफ्ट पे चले जाएंगे. ठीक है, तो आएगा 3, 5, 8, 9 एंड 12. 12 क्यों पहले आ गया जी, रूट्स 12 इज द रूट, उसके लेफ्ट पे 9 मौजूद है, तो पहले लेफ्ट डिस्प्ले होगा फिर रूट डिस्प्ले होगा, तो 9 पहले आएगा. जी ऐसी गलती से आ गया था. ठीक है, 3, 5, 8, 9, 12. तो एक और बात ध्यान में रखेंगे, इन अ बीएसटी व्हेनेवर यू डू एन इन ऑर्डर रिवर्सल इट गिव्स यू द सॉर्टेड डाटा. तो किसी बच्चे ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था यस यूट्यूब वीडियोस पे ही कि क्या ट्रीज सॉर्टिंग कर सकते हैं. तो सिंपल, अगर बीएसटी बना हुआ है तो यू जस्ट डू एन इन ऑर्डर रिवर्सल एंड फाइंड द सॉर्टेड ट्री. ठीक हो गया जी. ओके, देन आई डिलीटेड दिस वैल्यू 8. अगर 8 डिलीट हो जाएगा तो इन दिस ट्री व्हाट वुड बी द एडजस्टमेंट, अगर ये जो ट्री शेजल ने बनाया है, इफ यू लुक एट दिस ट्री जो फाइनल बना हुआ था, तो इफ आई डिलीट 8 तो दिस इज अ नोड विद वन चाइल्ड. तो आई वुड गो टू, तो वन चाइल्ड है तो सिंपली उसका वन चाइल्ड इसको रिप्लेस कर लेंगे, तो 12 ऊपर आ जाएगा 8 की जगह पे, तो 5 के राइट पे 12, 12 के लेफ्ट पे 9. ठीक है जी, तो वो ट्री बन जाएगा. सही है, उसके बाद डिलीटिंग 12, अगर 12 को भी डिलीट करेंगे तो 12 अगेन हैज वन चाइल्ड, तो वो जो 9 है वो 12 की जगह पे, तो 5 के लेफ्ट पे 3 और राइट पे 9, तो ये 3 नोट्स बन जाएंगे. ठीक है, दैट्स द डिलीशन. तो ठीक हो गया जी. तो विल स्टॉप हियर फॉर द बाइनरी सर्च ट्री. दिस lecture is complete now. In the next lecture we'll discuss AVL tree. If you have any questions you may ask. सर क्वेश्चन एक है कि सर इस आउट ऑफ द टॉपिक के सर सिलेबस बता दें.